Good morning, class 7th. Welcome to English literature class. Open your books, chapter number 3, page 20. After 20 years. This story is written by O. Henry. The policemen on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. So in this paragraph, it's a description about the policeman and the scene there. Okay, let's see the first line. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. A policeman was walking on the wide roads. Avenue means wide roads. A policeman was walking on the wide roads and he was patrolling on his daily route, on his daily assigned route. जिस route पे वो walk करता था, पेट्रोलिंग करता था, डेली गार्डिंग करता था, उस रूट पे वो वॉक कर रहा था एंड ही वॉज वॉकिंग वेरी इम्प्रेसिवली. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल. ये इम्प्रेसिवनेस उसकी नेचुरल थी, हैबिचुअल थी. मतलब ही वॉज नॉट शो ऑफिंग दैट कि हम बड़ा दिखा के इम्प्रेसिवली चल रहे हैं, बिकॉज द स्पेक्टेटर्स वर फ्यू. स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले. वहाँ पे देखने वाले बहुत कम लोग थे. वाई? बिकॉज इट वॉज 10 o'clock एट नाइट. लेकिन it was only 10 o'clock at night, लेकिन it was very cold there, but it was very cold, chilly gusts of wind. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे एंड हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स एकदम बेयर हो गई थी. there was rarely any people there. Okay, they well nigh de-peopled the streets. मतलब streets nearly खाली थी, nearly empty streets थी because of cold weather with shots of rain. Okay, trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. Trying doors he went, means he was walking door by door. रोड के दोनों साइड्स पे जो भी हाउसेस या शॉप्स बने हुए थे, तो he was walking across them, twirling his club with many intricate and artful movements, like he was walking with ease and grace, with style. He was walking with style, turning now and then to cast his watchful eyes adown the Pacific thoroughfare. Pacific thoroughfare means along the main road. तो अपनी eyes को वो चलता जा रहा था और अपनी eyes को left and right, turning his eyes, he was turning his eyes left and right, up and down, and having a look all around. ठीक है, उसकी नज़रें जो है वो चारों तरफ देख रही थी. He was very watchful, his eyes were very watchful. चारों तरफ देख रही थी. मेन रोड पे उसका ऑब्जर्वेशन चारों तरफ था. ठीक है. That officer was loyal. He was very loyal to his profession and he was walking in a very confident way. With his stalwart form and slight swagger, he was walking in a very confident way and he is loyal to the organization he is working. इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था. This line means that he was working honestly. Okay, he made a fine picture of the guardian of the peace. वो शांति का दूत बन के घूम रहा था कि वहाँ पे कोई न्यूइसेंस ना हो. पुलिसमैन का काम क्या होता है कि किसी तरह का कोई न्यूइसेंस ना होने पाए, क्राइम ना होने पाए और सब कुछ पीसफुली चलता रहे. राइट, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पुलिसमैन. तो वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली परफॉर्म कर रहा था एंड वेरी इम्प्रेसिवली ऑल्सो, बहुत इम्प्रेसिव तरीके से परफॉर्म कर रहा था. ओके, द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. जो एरिया था, विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया, जो आसपास का एरिया था वो ऐसा एरिया था कि वहाँ पे सभी लोग जल्दी सो जाया करते थे.
Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter. थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको कुछ कुछ देर में किसी सिगार स्टोर की लाइट नज़र आ रही थी, या फिर कुछ ऐसे लंच काउंटर्स थे जो रात भर खुले रहते थे, है ना, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो रात भर खुले रहते थे, तो वो रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, बाकी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था. But the majority of the doors belonged to the business places that had long since been closed. But ज़्यादातर डोर्स कैसे थे, वो बंद हो चुके थे, क्योंकि वो ऐसे बिजनेस प्लेसेस यानी कि ऑफिसेस के थे जो शाम को ही बंद हो गए थे. अभी तो रात के 10 बजे थे ना. दिस डिस्क्रिप्शन इज about 10 o'clock at night. Okay. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब किसी वो वॉक कर रहा था एंड रास्ते में he slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे उसको एक आदमी दिखाई देता है. अ मैन लीन्ड, एक झुका हुआ आदमी था जिसने एक अनलाइटेड सिगार माउथ में लिया हुआ था. अनलाइटेड सिगार माउथ में लिया हुआ था, वो जल नहीं रहा था सिगार. आज द पुलिसमैन वॉक टू हिम, जैसे ही ये पुलिसमैन उसके पास वॉक करते हुए पहुंचा, उस मैन ने तुरंत पुलिसमैन से बात की. क्या बात की? लेट्स सी. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. उसने कहा, ऑफिसर एवरीथिंग इज ओके, मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है और मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन. इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joe's Brady's Restaurant. Now, उसने क्या बताया कि मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ और ये अपॉइंटमेंट 20 years बैक तय हुआ था कि आज के दिन, आज के समय हमें यहाँ पे इस जगह पे मिलना है आफ्टर 20 years, as the chapter name says. Okay, lesson name says. तो 20 साल बाद मिलने का अपॉइंटमेंट था. 20 साल पहले यहाँ पे 20 years back there was a restaurant. What was the restaurant's name? Big Joe Brady's Restaurant. Yes, it was Big Joe Brady's Restaurant. वहाँ पे एक Big Joe Brady's Restaurant हुआ करता था और 20 years पहले उसने और उसके फ्रेंड ने प्रॉमिस किया था कि 20 साल बाद आफ्टर 20 years we'll come and meet here. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. तो पुलिसमैन ने करेक्शन किया कि 5 साल पहले तक यहाँ पे वो रेस्टोरेंट था, उसके बाद वो तोड़ दिया गया. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. अब वहाँ पे जो मैन था जिसके हाथ में सिगार था, तो उसने अपने सिगार को लिट किया यानी जलाया. The light showed a pale square jaw face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarfin was a large diamond, oddly set. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस मैन का डिस्क्रिप्शन है. It was all dark everywhere, तो कोई किसी को ठीक से क्लियरली देख नहीं पा रहा था. बट when that man lit his cigar, तो उसकी रोशनी में, उस मैचस्टिक की रोशनी में क्या दिखाई दिया? एक पेल स्क्वायर जॉड फेस विथ कीन आइज. स्क्वायर शेप का फेस था उस इंसान का और उसके फेस पे एक वाइट कलर का स्कार यानी दाग था, एक निशान था. नियर हिज राइट आईब्रो के पास एक निशान था और उसने स्कार्फ बांधा हुआ था और उसकी स्कार्फ पिन में एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था. ऑडली सेट, मतलब एक बड़ा अजीब तरीके से वहाँ पे एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. अब वो मैन जो है वो बताने लगा, किसको बताने लगा? पुलिसमैन को. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पुलिसमैन एंड दैट मैन.
उसने बताया कि 20 years ago बिग जो ब्रैडीज विस्ट्रो में मैं अपने बेस्ट चम यानी कि बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था और डिनर लिया था मैंने, एंड ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। हम दोनों न्यूयॉर्क में साथ ही बड़े हुए थे, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, हम दोनों भाई की तरह थे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 साल का था तब एंड जिमी वॉज 20 years old. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। अगली सुबह मैं अपनी किस्मत बनाने, अपना फ्यूचर बनाने वेस्ट की तरफ जा रहा था। यू couldn't have dragged जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क. He thought it was the only place on earth. जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर कोई नहीं ले जा सकता था। वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ न्यूयॉर्क ही एक जगह है रहने के लिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. उस दिन दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि 20 years बाद वो इसी जगह पे आके मिलेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको कितने दूर से आना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सेम डेट एंड टाइम पे दोनों फ्रेंड्स को यहाँ पे आके मिलना है, ठीक। और उन्होंने ये सोचा था, ऐसा प्रॉमिस उन्होंने एक दूसरे से क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि 20 years में जिसको जो बनना होगा वो बन जाएगा, मतलब वो अपनी लाइफ में स्टैब्लिश हो चुके होंगे, बिकॉज वो अडल्ट तो वैसे ही हो चुके थे। वन वॉज 18 एंड the other was 20 years old. So after 20 years वो जो भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, they will come and meet each other at this place. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? पुलिसमैन ने कहा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Rather a long time between meets, और तुम लोग इतने समय तक मिले नहीं थे क्या? बीच में तुम लोगों की कोई बातचीत भी नहीं हुई थी? Well, yes, for a time we corresponded, said the other. तो उस मैन ने कहा कि yes, कुछ टाइम के लिए हमारे बीच में कॉन्वर्सेशंस होते रहते थे, but after a year or two we lost track of each other. But 1-2 साल के बाद हमारे बीच में कोई लिंक नहीं था. You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively. और उसने बताया, but I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He'll never forget. और उसने बताया, किसने बताया? The man with the cigar. उसने पुलिसमैन को बताया कि देखिए, हमें अपनी लाइफ में बिजी हो गया था, and you know the life of West is very busy, है ना? It's a big proposition, it's a big offer. एंड वहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, एंड आई ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट. आई केप हसलिंग अराउंड मीन्स आई ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट. मुझे अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, और मेरी लाइफ, माई लाइफ वॉज टू हेक्टिक. मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई थी, तो इस वजह से हम एक दूसरे से, हमारा लिंक ख़त्म हो गया था, जैसे यूजुअली हो जाता है जब लोग बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने लाइफ्स में, अपने अपने करियर में. लेकिन आई नो माई फ्रेंड कि अगर इफ़ ही इज़ अलाइव, इफ़ ही इज़ लिविंग, ही इज़ नॉट डेड. इफ़ ही इज़ नॉट डेड, he will surely and 100% come here and meet me. Why? Because he is the most faithful man on this earth. I know. He is the staunchest old chap in the world. पूरी दुनिया में वो मोस्ट फेथफुल और ट्रू इंसान है. ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. उसे अपने जिमी वेल्स अपने फ्रेंड जिमी वेल्स पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो अगर ज़िंदा है तो वो वहाँ पे उससे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड फेथफुल इंसान है. ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड फेथफुल पर्सन. ओके, क्लियर? I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth if it my old partner turns up. मैं करीब 1,000 miles ट्रैवल करके यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, और ये मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी, तभी मेरी मेहनत का कोई फ्रूट मुझे मिलेगा, तभी वो वर्दी होगी का जब मेरा फ्रेंड मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मेरी उससे मीट हो जाएगी. The waiting man pulled out a handsome watch.
the lids of it set with small diamonds. अब उस आदमी ने टाइम देखा अपनी वॉच में, उस वॉच के ऊपर एक लिड था, लिड यानी ढक्कन, और उसकी उस लिड पे जो है छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे. तो दिस शोज दैट मैन वॉज वेरी रिच. 3 minutes to 10 he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. घड़ी देख के उसने टाइम बताया. 3 minutes to 10, 3 मिनट में 10 बजने वाले हैं. And 20 years ago it was exactly 10 o'clock. 10 बजा था जब हम इस रेस्टोरेंट डोर्स पे अलग अलग हुए थे, अपने अपने रास्ते पे बढ़ चले थे. Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. पुलिसमैन ने पूछा कि आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है. You bet. I hope Jimmy has done half well. उसने half as well. तो उसने कहा yes. लेकिन मुझे लग रहा है कि जिमी जो है इसका आधा भी कर पाया होगा. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. तो उसने कहा कि जिमी जो मेरा फ्रेंड था, he was a kind of plodder. Plodder means he was a very slow and steady worker. मतलब वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो स्लो था, और वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान था. He was a good fellow. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. फिर वो अपने बारे में कहने लगा कि मुझे बहुत ही चालाक लोगों से compete करना पड़ा. अपने फॉर्च्यून, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ही क्लेवर पर्सन से, क्लेवर पीपल से कंपटीशन लेके आगे बढ़ना पड़ा. दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड द पुलिसमैन. अ मैन गेट्स इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क. और जब इंसान न्यूयॉर्क में रहता है तो वो क्या करता है, वो एक रूटीन लाइफ जीता है. लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा. आई हैड टू लीड अ वेरी हेक्टिक लाइफ and I had to face very many clever people to gain my fortune. अपनी किस्मत में जो है उसे पाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ा, उनकी चालाकियों को फेस करना पड़ा. This is what he told about himself to the policeman. The policeman twirled his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. अब पुलिसमैन ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं. अब पुलिसमैन को तो अपनी ड्यूटी करनी थी, तो पुलिसमैन वो थोड़ा मूव करने लगा, और मूव करते करते उसने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका फ्रेंड यहाँ पे आए और आपसे मिले. ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे. I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time. So long, officer. तो उस मैन ने क्या कहा पुलिसमैन से उस ऑफिसर से उसने कहा कि नो, I'll wait for about half an hour. ठीक है, इतना टाइम तो मैं अपने फ्रेंड को दूंगा ही, मैं मार्जिन लेके चलूँगा. हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस जाए या किसी वजह से थोड़ा लेट आ पाए, तो मैं उसका वेट करूँगा एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. तो उस पुलिसमैन ने उस मैन को ही सेड गुड नाइट एंड ही अगेन स्टार्टेड हिज पेट्रोलिंग. ठीक है, वो चलने लगा. कहाँ पे चलने लगा, अपने रूट पे चलने लगा, जैसे कि उसको डेली चलना होता था, जो उसका रूटीन था. There was now a fine cold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. फिर यहाँ पे सेनरिक डिस्क्रिप्शन है. There was now a fine cold drizzle falling. Cold drizzle मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी. ठीक है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ने वाली बारिश हो रही थी. एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन प्लेन. जो पहले रुक रुक के विंड चल रही थी वो अब एक स्टडी फ्लो पे चलने लगी थी. यानी कि कहने का मतलब है कि मौसम और ठंडा हो गया था. वाई? बिकॉज इट वॉज ग्रोइंग
द नाइट वॉज ग्रोइंग ना, द नाइट वॉज ग्रोइंग, रात बढ़ती जा रही थी, तो रात बढ़ती जाती है, तो रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है वैसे वैसे क्या होती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है, ठंड के मौसम में वैसे ही हो रहा था. The few foot passengers still in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. अब कुछ लोग जो पैदल चल रहे थे, चूँकि ठंड बढ़ रही थी तो उन्होंने क्या किया, वो जल्दी जल्दी चलने लगे. दे स्टार्टेड वॉकिंग क्विकली, दे स्टार्टेड वॉकिंग क्विकली इन अ चीयरलेस वे. चीयरफुल नहीं था, कोई खुश नहीं था, क्योंकि सबको ठंड लग रही थी. एंड दे वांटेड टू रीच देयर होम्स, देयर प्लेसेस. सो जो भी वहाँ पे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जो भी वॉक कर रहे थे, दे स्टार्टेड वॉकिंग क्विकली बिकॉज दे वांटेड टू रीच होम. And silently they started walking quickly and silently, and what they did, they raised the collars of the coat. जैसे बड़े बड़े कॉलर का कोट होता है तो उसको रेज कर दिया कि हमारा नेक का पोर्शन भी ढक जाए. ठीक है, तो इसको कहते हैं विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई. ठीक है, एंड पॉकेटेड हैंड्स, अपने सबके हैंड्स कहाँ थे, पॉकेट के अंदर थे. ठीक है, टू कीप देम वार्म. अब वो इंसान क्या कर रहा था, वो मैन वहीं पे वेट कर रहा था, अपने सिगार को स्मोक कर रहा था. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हू, वेटिंग फॉर हिज यूथ फ्रेंड जिमी वेल्स. ही वॉज वेटिंग फॉर हिज यूथ फ्रेंड जिमी वेल्स, जिससे उसने 20 ईयर्स अगो एक अपॉइंटमेंट किया था. कुछ बेतुका सा था बिकॉज 20 ईयर्स तक किसको याद रहता है, या कल की बात तो लोग याद नहीं रखते, लेकिन फिर भी उसने जो प्रॉमिस किया हुआ था उसको पूरा करने के लिए वो वहाँ पे आया था. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 20 minutes उसने और वेट किया होगा. 20 minutes बाद एक टॉल मैन वहाँ पे आता है. उसने भी एक लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था, कॉलर हाई. ठीक है, और रोड क्रॉस करके, और he went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. आते ही उस मैम ने पूछा, Is that you, Bob? Bob, ये तुम हो. अब now who is this Bob? Bob is the man who was waiting for his friend. जो मैन इतनी देर से पुलिसमैन से बात कर रहा था और अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था, वो बॉब है. Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. तो उसने पूछा, बॉब ने पूछा कि ये तुम हो, जिमी वेल्स? Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well. 20 years is a long time. The old gone Bob. I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. How was the West treated you, old man? अब वो बहुत खुश था क्योंकि वहाँ पे उसका कौन आ गया था, फ्रेंड आ गया था. सो देयर वर टू फ्रेंड्स, बॉब एंड जिमी वेल्स. ओके, तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं श्योर था कि तुम यहाँ पे ज़रूर ज़रूर और ज़रूर आओगे, और इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक और डिनर ले सकूँ. ठीक है, तो फिर जिमी ने पूछा बॉब से, हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू, ओल्ड मैन? ओल्ड मैन, तुम्हें वेस्ट ने किस तरह से ट्रीट किया, मतलब तुम्हारे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे. सो दिस एंड्स टुडेज सेशन चिल्ड्रन. वील कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन. हैव अ गुड डे.